لیا میں تحصیل چوبارہ کی حدود میں گھر کے باہر بنے سیوریج کے گڑھے میں گر کر 4 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ والد صدام حسین نے گڑھا بنانے کی غلطی قبول کی اور اسے مٹی سے بھر کر بند کر دیا۔ کسی قانونی کارروائی کا فیصلہ نہ کیا۔ تھانہ مانگرہ والا پولیس نے دوہرے قتل کے مقدمے میں 2 سال سے مطلوب اشتہاری مجرم شفاقت کو گرفتار کر لیا۔ اشتہاری مجرم کو پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ساہیوال میں شہریوں کی صحت کے تحفظ کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی متحرک ہو گئی۔ 2 کارروائیوں کے دوران کریانہ سٹور سے 300 ساشے ممنوعہ گٹکا برآمد کیا گیا، جبکہ پانی کا سیمپل فیل ہونے پر ایک واٹر پلانٹ کو اصلاح تک بند کر دیا گیا۔ ممنوعہ گٹکا اور ایکسپائری اشیاء کی موجودگی پر کریانہ سٹور مالک کے خلاف FIR درج کر دی گئی۔ ملنگوال میں مرغی کے گوشت کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بے بس دکھائی دینے لگیں، جبکہ مہنگائی کے ستائے شہری شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں، نہ کوئی مؤثر چیکنگ ہو رہی ہے اور نہ ہی زائد قیمت وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی نظر آتی ہے۔ کوٹ رادھا کشن میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر نگہبان رمضان پیکج کے تحت 10,000 روپے امدادی رقم کی ادائیگی جاری کی گئی۔ انتظامیہ نے کہا ہے امدادی رقم ہر مستحق تک بروقت پہنچائی جائے گی۔ بہاولپور میں 21ویں انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی کی تقریب تقسیم انعامات منعقد ہوئی۔ صوبائی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ صوبائی وزراء بھی ہمراہ موجود تھے۔ مریم اورنگزیب نے ریلی کے شرکاء کی شاندار کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے کی رونقیں بحال کرتی ہیں۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک کے ریسرز کی چولستان آمد ملک کے روشن چہرے کی عکاسی ہے۔ السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں بلال اسلم اور میں ہوں نزہت نور۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ Training, technical training, and as I speak, in all the provinces of Pakistan and at the federal level, these initiatives are being rolled out day in and day out. And as a result of that, thousands and thousands of Pakistani young, trained, technically trained boys and girls are not only very busy in building Pakistan's economy, but are also working outside Pakistan. Let me also address this point in total clarity. I am absolutely against illegal immigration, and we are working with our European friends, countries like Austria, Germany, France, and other countries, to jointly bring this illegal immigration to a grinding halt. And in return, your demand for trained labor, skilled labor, we are going to fulfill that demand with international certification to your requirement and your satisfaction. Ladies and gentlemen, Pakistan is an agrarian economy. Even today, 60% of our population, they reside in rural areas.
آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف ویانا میں بزنس فورم سے خطاب کر رہے تھے. خطاب ان کا بھی جاری ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا کے چانسلر کے ساتھ بہت مثبت اور تعمیری گفتگو ہوئی ہے. کہا اس بزنس فورم کے ساتھ گفتگو کر کے بہت خوشی ہوئی. ہماری نوجوان نسل بہت باصلاحیت ہے. Government of Pakistan along with provincial governments are supporting our farming community to enhance per acre yield of our agriculture produce like sugar, cane, wheat, maize, and lots of other production with higher quality production combined with value addition interventions. Now here, Austria can be a great partner, providing Pakistan with experience, with modern technology to have value addition in the field of citrus fruit and make marmalades, juices, and export them to Austria, to Middle East, other parts of the world. Secondly, in mines and minerals, again, Austria can become a great partner. Meine Damen und Herren, Pakistan has vast resources of minerals and of course very rare minerals in the province of KP, Gilgit-Baltistan, Balochistan and Azad Kashmir. And again, I think Austria can be a great partner in this field. Tourism. Doppelmayr gentleman is sitting here. We met this morning a while ago with the Bundeskanzler and his team, and we had a very good discussion. I have invited him and other very illustrious business community from Austria to visit Pakistan and be our guest, be my guest. And we will take you to all these very important places where you will meet your business counterparts in all these areas I've just discussed and those I've not mentioned. And then we will also show you Hochbergen, beautiful mountains, and you will love it like as at Sinead here in Wien today. Beautiful. And we have such beautiful parts in Pakistan. So we will mix business with pleasure. So I would like to invite Vice President, through your good offices, all important business houses from Austria, and we will take care of their boarding and lodging. They will be our guests, and they will meet great entrepreneurs from Pakistan sitting on my left in this room, and those who are not in this room, in textile, in leather, and various other areas of mutual cooperation. I will not take more of your time. Ladies and gentlemen, just a few points. Austria, with its world-class expertise in engineering, renewable energy, environmental technologies, advanced manufacturing, to benefit Pakistan's growth trajectory. Austria's leadership in hydropower. You have world-renowned companies in hydropower, solar technology, biomass, and smart grid solutions. Aligns perfectly with Pakistan's ambitions. So, as I've already said, we invite Austrian companies to participate in renewable energy projects, grid modernization, and Energielage. And your Austrian firms are again world-class companies for precision engineering, machinery, industrial automation,
Welsh as a toy, but it is high-class technology, high class. So in agriculture and other areas, we welcome you, ladies and gentlemen, be our guest, and let's take this partnership to new heights. Finally, we look forward to the participation of Austrian companies in the EU-Pakistan Business Forum at the end of April in Islamabad. Vielen Dank, bitte schön, und es liebe die Pakistan-Österreich Freundschaft. Well, Your Excellency, thank you very much for your inspiring words and inviting Austrian and the Pakistan businesses to cooperate even more closely. We're coming now, it's not only about ceremonial, it's about business. Thank you very much. So we're coming now to the company introductions. Please, there is a very tight schedule, so I've been informed, please 1 minute per company. Please 1 minute per company introduction in your project. And we start, Mr. Prime Minister. आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वियना में बिजनेस फोरम से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ बहुत मस्बत और तामीरी गुफ्तगू हुई है। कहा, इस अहम बिजनेस फोरम के साथ मुलाकात करके और उनसे गुफ्तगू करके बहुत खुशी हुई। हमारी नौजवान नस्ल बहुत बासलाहियत है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात बहुत अहम है। पाकिस्तान की आबादी का 60% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। मजीद कहते हैं, पाकिस्तान की मईशत का अहम इन्हिसार ज़राअत पर है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे, लैया में तहसील चौबारा की हदूद में घर के बाहर बने सीवरेज के गड्ढे में गिरकर 4 साला बच्चा जान बहक हो गया। मुतवफ़ी बच्चे अबू जर ने घर के बाहर खेलते हुए गड्ढे में गिरकर जान की बाजी हार दी। वालिद सद्दाम हुसैन ने गड्ढे बनाने की गलती कबूल की और इसे मिट्टी से भरकर बंद कर दिया। किसी कानूनी कार्रवाई का फैसला न किया। नाज़रीन, हरिपुर में जीटी रोड पर मोटरसाइकिल और ट्रक में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जान बहक हो गया। हादसे में 46 साला जुबैर मौका पर जान बहक हो गया है। रेस्क्यू की टीम ने मौका पर पहुंचकर लाश को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया। उकाड़ा के लॉयर बारी दो आब कोट बारी पुल पर एक शख्स के नहर में डूबने की इत्तला मौसूल हुई है। कॉलर के मुताबिक नामालूम शख्स ने नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू टीमें स्कूबा डाइविंग, लाइन सर्च और प्लंजर और किश्ती की मदद से तलाश कर रही हैं। सर्च ऑपरेशन तारिक सदीक की क़यादत में जारी है और 4 गोताखोर समेत 10 रेस्क्यूअर्स हिस्सा ले रहे हैं। थाना मांगरावाला पुलिस ने दोहरे कत्ल के मुकदमे में 2 साल से मतलूब इश्तिहारी मुजरिम शफाकत को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इश्तिहारी मुजरिम ने हमराही मुल्जिमान के साथ साबिका दुश्मनी पर 2 भाइयों को कत्ल किया था और फरार हो गया। वारदात के दौरान मुल्जिमान पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस थे। इश्तिहारी मुजरिम को पेशावराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। लियाकतपुर के थाना तरंगा मोहम्मद पनाह की हदूद में मेन बाजार चौक पर बासर मुल्जिमान ने मामूली तकरार पर मेहनत कश को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा शख्स की जानिब से 15 पर कॉल और तहरीरी दरख्वास्त देने के बावजूद ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका, जबकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी भी अमल में न आई। मुतासरा शहरी ने DPO रहीम यार खान से इंसाफ फराहम करने की अपील करते हुए कहा कि मुल्जिमान बासिर और क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं, जिसके बायस इलाका मकीनों में शदीद खौफ तशवीश पाई जा रही है। मोजा खानपुर के रिहायशी जहूर हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि घर में तोड़फोड़ के दौरान उनके घर से सोना, चांदी और जहेज मालियत 3 लाख रुपए चोरी कर लिए गए। जहूर हुसैन के मुताबिक मुल्जिमान आमिर, खुजरू वगैरह आजाद घूम रहे थे कि जबकि उनकी बीवी फयाज माई पर तशद्दुद भी किया गया। मुतासिरा ने वज़ीर आला पंजाब और IG पुलिस से इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया है।
उधर लिया में जमीन पर मुबैना कब्जे का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शहरियों ने रेवेन्यू अमले और मुकामी अफराद पर मिली भगत से जबरदस्ती कब्जे की कोशिश का इल्जाम आयद कर दिया। लिया के इलाके मौजा पत्ती लेल में जमीन का तनाज़ा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। वही सरवर का कहना है कि 15 पर कॉल के बावजूद पुलिस ने मुबैना तौर पर मेरिट देखे बगैर उन्हें ही गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। मुतासरीन ने वज़ीर-ए-आला पंजाब और IG पंजाब से फौरी नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। साहिवाल में शहरियों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहर्रिक हो चुकी। फूड सेफ्टी टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए ममनुआ गुटखा जब्त कर लिया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक 2 कार्रवाइयों के दौरान करियाना स्टोर से 300 साशे ममनुआ गुटखा बरामद किया गया है, जबकि पानी का सैंपल फेल होने पर एक वाटर प्लांट को इस्लाह तक बंद कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक टेस्ट के दौरान पानी में बैक्टीरिया पाए गए। ममनुआ गुटखा और एक्सपायरी अशिया की मौजूदगी पर करियाना स्टोर मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने आरिफवाला में एक करियाना स्टोर के खिलाफ इमरजेंसी ऑर्डर नाफिज करके मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुआयने के दौरान स्टोर में मौजूद लाल मिर्च पाउडर और फ्लेक्स में मुज़र सेहत मसनूई रंग की मिलावट सामने आई, जिस पर 12 किलोग्राम मसनूआत तलब कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने हिदायत की कि मिलावट के हर वाक़े की सख्त और फौरी तहकीकात की जाएँ और जिला भर में फूड सेफ्टी के आला मयार पर मुस्तकिल निगरानी यकीनी बनाई जाए। सिटी पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर पुलिस लाइन्स फैसलाबाद में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। जनरल परेड में SP इकबाल डिवीजन सईद अहमद ने दस्ते का मुआयना किया और पुलिस एहलकारों का टर्न आउट चेक किया है। परेड में लाइन ऑफिसर्स, एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और SPU के जवानों ने शिरकत की है। सरगोदा की तहसील साहिवाल में असिस्टेंट कमिश्नर ने चार्ज संभालते ही THQ अस्पताल, फैमिली पार्क और शहर का दौरा किया। उन्होंने अस्पतालों में मुफ्त अदवियात की फराहमी को यकीनी बनाने और अवाम के मसाइल सुनने पर जोर दिया। तमाम दफातर में अमले को ईमानदारी और बरवक्त ड्यूटी की हिदायत दी गई और कहा कि करप्शन और फ्राइज में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहर के तरक्याती मंसूबों और मानसून से निमटने के लिए इकदाम पर तफसील से रोशनी डाली। सूबाई वज़ीर ने कहा है कि मानसून के दौरान शहर में पानी जमा होने के मसाइल को हल करने के लिए 12 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए हैं। वासा सियालकोट की जदीद मशीनरी को मुतहर्रिक किया जाएगा। 1 अरब 90 करोड़ रुपए से नई मशीनरी खरीदी जा रही है और 2 डिस्पोजेबल स्टेशन बनाए जाएंगे। अभी आपको बताएं कि मलिकवाल में मुर्गी के गोश्त की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां बेबस दिखाई देने लगी हैं, जबकि महंगाई के सताए शहरी शदीद गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, ना कोई मौसर चेकिंग हो रही है और ना ही जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां नजर आती हैं। अवामी हलकों ने सवाल उठाया है कि जब सरकारी निरखनामे मौजूद हैं तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं कराया जा रहा। शहरियों ने जिला इंतजामिया और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को फाल बनाने और गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान भर की तरह पाकपतन में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा शहरियों की मुश्किलात में इजाफे का सबब बन चुका। जी हाँ, इस हवाले से मजीद तफसीला जान लेंगे बख्तियार सुखेरा से। जी बिल्कुल, रात गए वफाकी हुकूमत की जानब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिससे पाकपतन के शहरी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, मजीद उन्हीं से जानते हैं वो हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह के सारे ਨੂੰ पता है पंजाब पहले सैलाब की ज़्यादा चाया रहा, उस सैलाब चो ਅਸੀਂ निकले हाँ तो आलू की फसल ਅਸੀਂ काश की सी, आलू का रेट बिल्कुल डेड हो गया, जिंदी जरे मुताबिक सानू कोई चीज़ नहीं मिली। वो काश के पैसे ही नहीं साढ़े पूरे हुए, उतों आम बहुत परेशान है। डीजल पेट्रोल आए दिन बढ़िया जा रहा है। महंगाई का यह हाल है कि डीजल पवाना बहुत मुश्किल हो गया जी। मक्की काश करनी है, अगले दिन डीजल वध गया, हुण मक्की काश करने का टाइम आया फिर डीजल वध गया। जो सारा फसलां काश्त हो जांदियां ने उदों डीजल डाउन हो जाता है, ताकि आवाम को तो चाहिए कि हुकूमत चाहिए कि जो मकई काश करी, कोई भी फसल काश करनी हो उदों चाहिए कि डीजल पेट्रोल का रेट डाउन हो ताकि जिमीदार खुशहाल हो। मेहरबानी जी।
جی جیسا کہ شہری کی بات آپ نے سنی، شہری کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو رات گئے ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں ان کو کم کیا جائے. عام آدمی جو ہے وہ پہلے ہی مالی مشکلات کا شکار ہے اور زمیندار جو ہے وہ بھی اس وقت سراپا احتجاج ہے. یہ شہری جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کر رہے ہیں کہ پٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کی جائیں اور شیعہ خرد و نوش جو ہے ان کی قیمتیں بھی کم کی جائیں تاکہ آنے والا جو ماہ سیام ماہ رمضان ہے وہ عید بھی کر سکیں اور اپنے بچوں کے کپڑے وغیرہ بھی لے سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ بختیار سفیرہ ٹی وی ٹوڈے پاک پتن. ناصرین، رینالہ خورد میں عوام نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو مسترد کر دیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان سے قبل یہ اضافہ مہنگائی کے نئے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ رانا عثمان سے. جی رانا عثمان، بتائیے گا. جی بہت شکریہ. گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک بار پھر رات کی تاریکی میں پٹرول بم گرا دیا ہے جسے رینالہ خورد کی عوام نے یکسر مسود کر دیا ہے. پٹرول کی قیمت میں 5 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے اضافہ کیا گیا جسے رینالہ خورد کی عوام نے یکسر مسود کر دیا ہے. اس حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا کہ ہم تو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے تھے، اوپر سے یہ جو رہی سہی کثر تھی وہ پٹرولی مصنوعات کو بڑھا کر نکالی جا رہی ہے. اس حوالے سے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کوئی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی بالکل، آپ نے بہت اچھا ایجنڈا اٹھایا. ہم لوگ پہلے ہی پریشان تھے مریم صاحبہ نواز صاحبہ کی طرف سے کہ وہ چلان 4,000 6,000 کا کر رہی ہیں. اب مزید ہماری پریشانی میں اضافہ کر دیا گیا. یہ بمپ ہے کہ ہم پہ مہنگائی کا. ٹھیک ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی پلیز میری حکومت سے گزارش ہے کہ ریلیف کیا جائے ہمیں. ہم لوگ یا تو اپنے پیٹرول پورا کریں، بچوں کے اخراجات پورے کریں. ٹھیک ہے، ہم رکشے والے پہلے ہی بہت پریشان ہیں، تو برائے مہربانی اپنا ہمیں ریلیف دیا جائے. شکریہ. جیسا کہ آپ نے شہری کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم تو پہلے ہی پریشانی میں مبتلا ہیں، اوپر سے یہ پیٹرولیم مصنوعات کی اضافہ کر کے ہماری پریشانیوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ خدارہ پیٹرولیم مصنوعات کو ریٹس کو کنٹرول کیا جائے بلکہ کم کیا جائے تاکہ ہماری مشکلات میں کمی آ سکے. جی ضلع صوبت پور کے ایک پسماندہ علاقے میں معصوم طلباء آج بھی تعلیم کے حصول کے لیے خطرناک راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہیں. ضلع صوبت پور کے علاقے کے طلباء کو اسکول پہنچنے کے لیے مانجوٹ ہی شاخ عبور کرنا پڑتی ہے، جہاں نہ کوئی پل ہے اور نہ ہی محفوظ گزرگاہ. سردیوں کو یکبستہ ہوائیں ہوں یا بارشوں کے دوران پانی کی بلند سطح، ہر موسم میں یہ راستہ بچوں کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں ہے. اہل علاقہ نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ مانجوٹ ہی شاخ پر فوری طور پر ایک محفوظ پل تعمیر کیا جائے تاکہ بچوں کا مستقبل محفوظ بنایا جا سکے. ادھر تھر پارکر کے پبلک ہیلتھ محکمے میں مبینہ کرپشن کے سنگین انکشافات سامنے آئے ہیں. انکشاف ہوا کہ ہر نئی سہمائی میں 40 سے 50 ملازمین کی تنخواہوں سے 75,000 روپے فیکس کاٹ کر مبینہ طور پر ہڑپ کیے جا رہے ہیں. آر او پلانٹ ملازم خان محمد جنیجو نے بتایا کہ دسمبر کی سہمائی میں ان کی تنخواہ بھی کاٹ لی گئی. شدید مالی پریشانی کے باعث گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے اور بچوں کو بھوک برداشت کرنا پڑ رہی ہے. متاثرہ ملازمین نے اعلی حکام سے اپیل کی کہ فوری نوٹس لے کر کٹی ہوئی تنخواہیں بحال کی جائیں اور ذمہ داران افسران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے. محلن وال دھیم پار کے کھلے مین ہول شہریوں کی جان کے لیے شدید خطرہ بن چکے ہیں. سانحہ بھاٹی گیٹ لاہور کے بعد بھی انتظامیہ نے محلن وال تھیم پارک میں جگہ جگہ کھلے مین ہولز کو نہایت خطرناک صورتحال میں چھوڑ دیا ہے. چند ماہ قبل اسی وجہ سے ایک خاتون کی لاش ملی تھی لیکن اب بھی کسی قسم کی عملی کارروائی نہیں ہو سکی. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فی الفور نوٹس لینے اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کسی بڑے حادثے سے قبل صورتحال پر قابو پایا جا سکے. تو ناظرین، اوکاڑا شہر میں ٹرالی میں موجود بجلی کے ٹرانسفارمر سے شہریوں کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے. ٹرانسفارمر کے ارد گرد نامناسب حفاظتی انتظامات کیے گئے، نہ کوئی وارننگ سائن نصب کیا گیا جس سے کسی بھی وقت حادثہ ہو سکتا ہے. اہل علاقہ نے متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے اور ٹرانسفارمر ٹرالی کو ہٹانے کا مطالبہ کیا تاکہ کسی ممکنہ ناخوشگوار واقعے سے پہلے صورتحال پر قابو پایا جا سکے.
पतों की मेगा रोड पर सेवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस गटर आए रोज उबलने लगे, जिससे इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। पतों की मेगा रोड पर मुल्हिका इलाकों में सीवरेज का बंद पानी गलियों में जमा होने से बदबू और ताफुन फैल चुका है। गंदे पानी के बाद शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं, जबकि मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर और असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। जलालपुर पीरवाला में स्याह तीतर रखने वाले शौकीन अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने पंजाब में स्याह तीतर के लाइसेंस पर आयद पाबंदी फौरी खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि पाबंदी के बायस शौकीन अफराद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि दीगर सूबों में बाकायदा लाइसेंसिंग सिस्टम मौजूद है। एहतजाज में शरीक अफराद ने मरीम नवाज और मरीम औरंगजेब से अपील की कि दीगर सूबों की तर्ज पर पंजाब में भी लाइसेंस बहाल किए जाएं, ताकि कानूनी तरीके से परिंदे रखे जा सकें और गैर कानूनी शिकार और स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन हो। सियालकोट में कराची के हालिया वाकयात के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी जिला सियालकोट इम्तियाज अहमद बरियार और दीगर मुकर्रीन ने कहा है कि कराची में पीपल्स पार्टी के मुसल्लत करदा नाअहल मेयर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध पुलिस की जानिब से सिंध असम्बली के बाहर शहरियों पर शेलिंग, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। मुकर्रीन का कहना था कि जमात इस्लामी अपने लिए नहीं बल्कि अहले कराची के शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन जिद्दोजहद कर रही है, जो हर किस्म की फस्तायत के खिलाफ जारी रखी जाएगी। मीरपुर साकरू एट घारू के असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से शहरियों के साथ बदअखलाकी और गालम गलोच करने की वीडियो वायरल हो गई है। वीडियो वायरल होने के बाद टाउन चेयरमैन जाम हसन जोखियो ने हंगामी इजलास तलब किया और सेक्रेटरी सिंध से असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया। सिविल सोसाइटी और सियासी रहनुमाओं ने कहा कि एक सरकारी ऑफिसर के लिए ये रवैया नाकाबिल कबूल है और फौरी सख्त कार्रवाई की जाए ताकि शहरियों का एतमाद बहाल हो। नौशहरा फेरोज में सिंध पुलिस के उम्मीदवारों ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने शदीद नारेबाजी करते हुए एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो तमाम मराहिल क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उन्हें ऑफर ऑर्डर्स जारी नहीं किए जा रहे। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि वेटिंग लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को फौरी ऑफर ऑर्डर्स जारी किए जाएं। बसूरत दीगर सिंध भर के नौजवान एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा की अवाम दोस्त पॉलिसियों के तहत हरीपुर में जदीद तर्ज का पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कायम कर दिया गया। इस मौका पर इंचार्ज ड्राइविंग स्कूल हिना इमदाद, इंचार्ज पुलिस सहूलत मरकज कायनात और दीगर स्टाफ भी मौजूद था। डीपीओ हरीपुर ने कहा कि ये इकदाम शहरियों को महफूज ड्राइविंग की तरबियत फराहम करने और ट्रैफिक नज़्म व ज़ब्त बेहतर बनाने की जानिब अहम कदम है। हैदराबाद में यौम मादर वतन के जलसे से डॉक्टर कादिर मक्सी ने खिताब किया, जिसमें उन्होंने मुल्क में करप्शन के खात्मे पर जोर दिया। डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा है कि अगर मुल्क से करप्शन खत्म कर दी जाए तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि करप्शन करने वालों को सजा देने से हुकूमत को IMF के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उधर कोट राधा किशन में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर निगहबान रमजान पैकेज के तहत 10,000 रुपए इमदादी रकूम की अदायगी जारी की गई है। कोट राधा किशन में झांगा मांगा रोड गंदिया चौक पर निजी शादी हाल में लगाए गए कैंप में मुस्तहिक अफराद अपनी मदद आप के तहत रकूम वसूल कर रहे हैं। इंतजामिया ने कहा कि इमदादी रकम हर मुस्तहिक तक बर वक्त पहुंचाई जाएगी। पाकपतन में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक माह रमजान में आवाम को मयारी अशिया बर वक्त और मुनासिब निर्खों पर फराहम करना ज़िले इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे बख्तियार सुखेरा। बरकतों, रहमतों, फजीलतों भरा रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने मॉडल बाजार में कायम निगहबान रमजान बाजार का मुआयना किया, जहां उनका कहना था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक सहूलत बाजार सेटअप किए गए हैं
اور آپ نے میرے ساتھ خود اس بازار کا وزٹ کیا ہے. ویزیبلی مارکیٹ سے ہمارے یہاں پہ ریٹس جو ہیں وہ 20 سے 25% جو ہے وہ کم ہوں گے. نگہبان رمضان بازار میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور بازار کل سے باقاعدہ فعال ہو جائے گا. ڈپٹی کمشنر نے بازار کے مختلف اسٹالز کا معائنہ کیا. اور گورنمنٹ آف پنجاب کا ویژن ہے اور ڈائریکشنز ہیں کہ ہم نے اس کو ایز اے جشن انشاءاللہ منانا ہے. رمضان کی فیسٹیوٹی کو دوبالا کرنا ہے اور آپ کے شہر کو انشاءاللہ سجانے کا پروگرام بھی چل رہا ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. رمضان بازار میں آٹے کے 10 کلو گرام کے تھیلے کی قیمت 850 روپے مقرر کی گئی ہے, جبکہ محکمہ خوراک کے 18 خصوصی سیل پوائنٹس پر یہ 950 روپے میں دستیاب ہے. نگہبان بازار میں دیگر اشیاء خرد و نوش عام مارکیٹ سے کم نرخوں پر دستیاب ہوں گی. ضلعی سطح پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ فعال ہیں. پہلے رپورٹ ہوا, اس پہ ہم نے بڑا سخت ایکشن لیا, وہ آپ دوستوں کے نالج میں ہوگا. ہماری سپلائی آ رہی تھی رحیم یار خان سے, وہ ہم نے فل فورس سپلائی کو ختم کر دیا, روک دیا. اب یہاں سے ہم اپنا سٹاک جو ہے گندم کا ایشو کر رہے ہیں اور اس کی کوالٹی کے ٹیسٹ بھی ہم نے کروائے ہیں. ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کی حرکت اجازت نہیں دی جائے گی اور ایسے عناصر کے خلاف فوری کارروائی کرتے ہوئے گرفتاری اور مقدمہ درج کیا جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ بختیار سکھیرا, ٹی وی ٹوڈے, پاک پتن. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. بلیٹن میں آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ میلسی میں نجی ویلفیئر سوسائٹی نے نواحی علاقہ غوث والا اور موزہ فتح پور میں سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف منصوبہ مکمل کر لیا. 1.5 ایکڑ اراضی خرید کر 45 مرلہ پلاٹس قراندازی کے ذریعے مستحق خاندانوں میں تقسیم کیے گئے. 10 مرلہ اراضی پر مسجد اور امام کی رہائش بھی تعمیر کی جائے گی. تقریب میں پریس کلب کے صدر سجاد احمد سعیدی, جنرل سیکرٹری میاں ندیم اور دیگر معززین نے شرکت کی اور اس اقدام کو متاثرین کے لیے امید اور بحالی کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا. ڈیرہ مراد جمالی میں یوم والدین کے موقع پر ایک رنگا رنگ اور بابکار تقریب منعقد کی گئی. ڈیرہ مراد جمالی کے ضلعی اسمبلی ہال میں نجی اسکول کے زیر اہتمام یوم والدین کی مناسبت سے پروکار تقریب منعقد ہوئی ہے. تقریب کے مہمان خصوصی سابق صوبائی وزیر میر عبدالغفور لہڑی تھے, جبکہ میر شوکت جان سمیت دیگر معززین نے شرکت کی ہے. ادھر سندھیلیاں والی کے علاقے میں 28 شعبان کے موقع پر سالانہ مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا. ذاکر وسیم عباس بلوچ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان اور واقع کربلا بیان کرتے ہوئے حاضرین کے دلوں کو منور کیا. علاقہ بھر سے مومنین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مجلس کے اختتام پر ذاکر وسیم عباس بلوچ نے آنے والے تمام مومنین اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی. ناظرین, لیاقت پور میں برصغیر کے معروف روحانی پیشوا حضرت پیر سید شاکر حسین شاہ کے عرس کی مرکزی تقریب منعقد ہوئی. خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بزرگان دین نے اسلام کی تعلیمات کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا اور حضرت پیر سید شاکر حسین شاہ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر سینکڑوں غیر مسلم افراد نے دائرہ اسلام میں داخلہ حاصل کیا ہے. تقریب میں حمد و ثنا, محفل سماع کا اہتمام کیا گیا, جبکہ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل ہی دین اور دنیا کی کامیابی کا واحد راستہ ہے. روہڑی کے قدیمی مندر وسن گھوٹ میں پارو شاہ کا 136واں عرس دوسرے دن بھی جاری ہے, جہاں ملک کے مختلف علاقوں سے یاتریوں کا سلسلہ جاری ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں روہڑی سے ہمارے نمائندہ غلام مصطفیٰ کی اس رپورٹ میں. ہر سال کی طرح اس سال بھی قدیمی مندر وسن گھوٹ روڑی میں پارو شاہ کا 136واں عرس دوسرے دن بھی جاری. عرس میں ملک کے مختلف علاقوں سے یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری, جو پارو شاہ مندر میں ماتھا ٹیک کر اپنے من کی مرادیں پوری ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں. عرس کے موقع پر یاتریوں کے لیے پرشاد و بھنڈارے کا بندوبست کیا گیا. یاتری اپنی من کی مرادیں پوری ہونے پر یاتریوں میں پرشاد بانٹتے ہیں رہے. اس موقع پر روڑی اقلیتی برادری کے مکھی وکی کمار اور دوسروں نے اس کے حوالے سے ٹی وی ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے کہا, اور یہ فبروری کے مہینے میں آتا ہے. اس کے ساتھ پوج پارو شاہ کی ڈیوری صاحب پہ پلو صاحب پہن کے جو ہے اپنے یاتری جو ہے اپنے گھروں پہ جاتے ہیں اور جو ان کی منت پوری کی وہ خوشی کے جھومتے ہوئے جاتے رہتے ہیں. کنارے سندھ میں مشہور آستان ہے, یہاں ہر سال یہ 2 عرصیاں سال میں منائی جاتی ہے اور دوسرے ملکوں سے, شہروں سے, سندھ سے, پنجاب, بلوچستان سرحد سے آدمی ادھر دعا لینے آتے ہیں.
उसी की जो भी मन की मुराद होती है वो अल्लाह से उसी की पूरी करते हैं। पारोशाह के उर्स पर हर साल इंडिया से भी अक़लियती बिरादरी के मुर्शिद पहुंचकर आने वाले यात्रियों को दुआएं देते हैं, जिससे यात्रियों की खुशी में मजीद इजाफा हो जाता है। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुस्तफ़ा उमरानी, टीवी टुडे न्यूज़, रोड़ी। लोहरदीर के इलाके तलाश सराय बाला में सालाना दस्तार बंदी की रूहानी और इल्मी तकरीब मुनक्किद हुई। मौलाना कारी इमरान बदर ने खत्म कुरान कराया है, जबकि कारी अदनान मदनी ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद रहीम हकानी और साबिक वज़ीर ख़जाना मुजफ्फर सैयद एडवोकेट ने कहा है कि मुल्क भर में 30,000 से ज़ायद मदारिस में 45 लाख से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिन्हें तालीम, रिहाइश और खुराक मुफ्त फ्राहम की जा रही है। उन्होंने हुकूमत से मदारिस के रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट्स के मामलात में आसानियां पैदा करने का मुतालिबा किया है। नारोवाल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड ने साल 2026 के लिए अपने रजिस्ट्रेशन का रेन्यूअल सर्टिफिकेट बाज़ाब्ता तौर पर वसूल कर लिया है। अहदेदारान ने कहा कि प्रेस क्लब सहाफ़ती अक़दार के फ़रोग़ और सिमादाराना रिपोर्टिंग के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखेगा। डीओ इंडस्ट्री ने सहाफ़ियों के किरदार को सराहते हुए कहा कि मुआशरे में आगाही और शफाफियत के लिए मीडिया नहायत अहम सतून है। सियालकोट में महकमे जंगलात के ज़रिए इंतजाम शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस साल सियालकोट में करीबन 1.5 लाख नए पौधे लगाए जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर को मामूली कीमत पर पौधे फ्राहम किए जाएंगे। प्रोग्राम के इख्तिताम पर अफसरान को बेहतरीन इंतजामात पर खराज तहसीन पेश किया गया है और जंगलात की तरक्की के लिए दिन रात काम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं और आपको बताएं कि सियालकोट में करीबन 1.5 लाख नए पौधे लगाए जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर को मामूली कीमत पर पौधे फ्राहम किए जाएंगे। प्रोग्राम के इख्तिताम पर अफसरान को बेहतरीन इंतजामात पर खराज तहसीन पेश किया गया है और जंगलात की तरक्की के लिए दिन रात काम करने की हिदायत भी जारी की गई है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए भी आपको बताएंगे कि ओकाड़ा में महकमा सोशल वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम जिना क्रिकेट स्टेडियम में इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई है। तकरीब में मुस्तहिक और नादार खानदानों की बेटियों की इज्तिमाई रुखसती का एहतमाम किया गया और दुल्हनों को घरेलू इस्तेमाल का सामान और तोहफे फराहम किए गए ताकि वो अपनी नई जिंदगी का आगाज बाइज्जत और पुरएतमाद अंदाज में कर सकें। सूबाई वजीर सोहेल शौकत भट्ट ने कहा कि धीरानी प्रोग्राम बेटियों के लिए बोझ कम करने और उन्हें बावकार सहारा फराहम करने का इनकलाबी इकदाम है। नाज़रीन, सरगोदा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स दस्तूर के नौमंतखब सदर जी हसनैन शाह की हल्फबर्दारी की तकरीब एक मकामी होटल में मुनक्किद हुई। स्टेट सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी बिलाल मून ने बताया है कि साबिक सदर जुल्फिकार हाशमी के इंतखाबी कामयाबी के बाद सदर का ओहदा हुसनैन शाह को सौंपा गया है। मेहमान खुसूसी चौधरी हामिद हमीद ने कहा कि सहाफ़ी माशरे की आंख और आवाज़ हैं और हुकूमत उनके मसाइल के हल के लिए ताउन जारी रखेगी। बहावलपुर में 21वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली की तकरीबें तकसीम इनामात मुनक्किद हुई है। सूबाई वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है, जबकि सूबाई वज़रा भी उनके हमरा मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने रैली के शुरका की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सूबे की रौनकें बहाल करती हैं। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के रेसर्स की चोलिस्तान आमद मुल्क के रोशन चेहरे की अक्कासी है। उन्होंने नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर 160 तारीखी मकामात की बहाली से सियाहत को फ़रोग़ दिया जाएगा, जबकि चोलिस्तान के कलों और तारीखी वर्से की बहाली भी की जाएगी। सखर में हुकूमत सिंध के महकमे खेल के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा मरहूम गुलाम मोहम्मद खान क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच कामयाबी के साथ इख्तिताम पज़ीर हो गया। सखर की टीम ने पनुआकिल की टीम को शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। फातेह टीम को 2 लाख रुपए नकद, जबकि रनर अप को 1 लाख रुपए इनाम दिया गया है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट को मोटरसाइकिल पेश की गई है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर सखर ने कहा खेलों की सरगर्मियां नौजवानों को मुस्बत समत फ्राहम कर रही हैं। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन सखर के अहदेदारान, स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स, खिलाड़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
फैसलाबाद में ज़राई यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स जिम्नेजियम नेशनल बॉक्सिंग टैलेंट हंट चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद नासिर एजाज सहतंग ने कहा कि बासलाहियत बॉक्सर्स को नेशनल से इंटरनेशनल सतह तक मौका फराहम किया जाएगा। इफ्तिताही दिन 40 मुकाबले खेले गए और सैकड़ों खिलाड़ी, कोचेस, टेक्निकल ऑफिशियल्स और शायकीन मौजूद थे। टंडवाला यार्ड में बढ़ती हुई इंक्रोचमेंट और बाजार के अंदर बेहंगम दाखिल होने वाले रिक्शों ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया, जिसके बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हमाद अली की इस रिपोर्ट में। टंडवाला में बढ़ती हुई इंक्रोचमेंट और बाजार के अंदर बेहंगम दाखिल होने वाले रिक्शों ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। एक जानिब इंतजामिया की जानिब से सिर्फ गरीब ठेले वालों के खिलाफ कार्रवाई करके इंक्रोचमेंट खत्म करने के दावे किए जाते हैं, जबकि बहुत सारे इंक्रोचमेंट माफिया बदस्तूर कायम है, जिन्होंने बाजारों में मुस्तकिल पथारे जमा रखे हैं। दूसरी जानिब बाजार के अंदर दंदनाते रिक्शों ने अवाम की जिंदगी उजीरन बना दी है, जिसकी बाइस खरीदारी के लिए आने वाली ख्वातीन, बुजुर्गों और राहगीरों को शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों का कहना है कि बेहंगम ट्रैफिक के बायस हादसात का खदशा भी बढ़ गया है। यार में रिक्शों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मेन मार्केट गेट से लेके चमड़ नाके तक, मौज दरिया पे देख ले, तेल की टंकी के यहाँ पे देख ले, सिर्फ रिक्शों की आपको रश नजर आएगी। चाहे उसमें सवारी हो ना हो, खाली हो, ये चलाते भी इतनी जाहिलियत से कि ना देखेंगे कोई बुजुर्ग है ना बच्चा है। स्कूल के बच्चों को परेशानी होती है। इस कदर इन्होंने जलील कर रखा है, ट्रैफिक में इतना इन्होंने इजाफा कर दिया है। सिर्फ रिक्शों नहीं, मेन मार्केट में इनका कोई काम नहीं है, लेकिन ये फिर भी बाजारों में आते हैं खाली रिक्शे लेके, कोई सवारी नहीं है, कुछ भी नहीं है फिर भी। तो डीसी टंडोलियार से हमारी अपील है कि इस चीज़ पे नोटिस लें। टंडोलियार के इंतजामिया से गुजारिश है कि हमें जो है रिक्शों का रूट दिया जाए, एक जो है स्टैंड दिया जाए जहाँ हम इज्जत के साथ खड़े हों, सवारी लेके आए, सवारी लेके जाएं। यहाँ जो है दुकान वालों हैं, ये इन्होंने अपना सामान रोड के ऊपर रखा हुआ है, फिर हम जो है सामान लेने के लिए आते हैं दुकान के पास, ब्रेक लगाते हैं तो फिर जो है दुकान वाला भी बोलता है निकलो। शहरियों ने जिला इंतजामिया और आला काम से मुतालबा किया है कि इस मसले का नोटिस लिया जाए, बाजारों में बिलाइजाजत रिक्शों के दाखिले पर फौरी पाबंदी आयद की जाए और बिला इम्तियाज इंक्रोचमेंट के खिलाफ मुयसर कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि अवाम सुकून से खरीदारी कर सके। कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ हमाद अली, टीवी टुडे न्यूज़, टंडोलियार। तो नाज़रीन, हरुनाबाद में आटे की बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। शहरी महंगाई के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। हुकूमत की जानब से सस्ते आटे के इक़दामात को मार्केट माफिया ने नाकाम कर दिया। आटे की फी किलो कीमत में इजाफे ने गरीब तबके की कमर तोड़कर रख दी है। महंगाई की नई लहर ने रोजमर्रा जिंदगी को शदीद मुतासर कर दिया है। शहरियों का कहना है पहले बिजली, गैस और दीगर एशिया जरूरत की कीमतों में इजाफा हो चुका है। अब आटे की कीमत बढ़ने से 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर आटे की कीमतों में कमी की जाए। इतना महंगा हो गया कि खरीदना मुश्किल हो गया, 2 टाइम की रोटी भी खाना मुश्किल हो गई। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें गरीबों को कोई रिलीफ दे। हम महंगे दामों गंदम खरीदते हैं, जिसकी वजह से मजबूरन हमें कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। अगर गंदम हमें अच्छे रेट्स पे मिल जाए तो रेट भी इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। आटे की कीमत में इजाफे ने महंगाई की स्थायी अवाम के मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया है। हारूनाबाद के शहरियों ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने और आटे की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया है ताकि गरीब तबका सुख का सांस ले सके। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। टंडवाला यार्ड में सिंध हुकूमत के तालीमी एमरजेंसी के दावों तक महदूद नजर आ रहे हैं। टाउन सुल्तानाबाद में कायम गवर्नमेंट हाई स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से तलबा खौफ के साए में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रशीद अब्बासी। टाउन कमेटी सुल्तानाबाद में कायम गवर्नमेंट हाई स्कूल सुल्तानाबाद बुनियादी सहूलियात से महरूम। छत का प्लास्टर गिरने की वजह से तलबा खौफ के साए में तालीम हासिल करने पर मजबूर। तलबा ने टीवी टुडे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग डैमेज हुई पड़ी है, यहाँ पर पीने का पानी साफ नहीं है, वॉशरूम का मसला है, वॉशरूम सही नहीं है, और छत का मसला है, बारिशों में बहुत मसला होता है, बैठने में यहाँ पर करंट वगैरह आता है, दरवाजे वगैरह सही नहीं है, कोई सफाई करने वाला भी नहीं है। स्कूल हमारी स्कूल बहुत डैमेज हुई पड़ी है और यहाँ पर कोई भी नई फैसिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ सुबह आते हैं हम, जहाँ पर जो बहुत मच्छर है, हम बैठ भी नहीं सकते। वजीर आला सिंध और वजीर आला तालीम से हमारी यही गुजारिश है कि हमें
स्कूल बेहतर बना दिए। स्कूल जो है वो भी बहुत डैमेज हुई है, सारी जो भी दीवारें पे जो प्लास्टर वगैरह जो भी है वो भी निकले हो रहे हैं, इसीलिए हम डर के साए में फिर भी पढ़ रहे हैं। मेरा नाम मिस्री है, मैं गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल सुल्तानाबाद नंबर 1 में पढ़ता हूँ। मैं 10वीं जमात में हूँ और हमारी स्कूल की हालत तमाम खराब है। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा कि स्कूल की बिल्डिंग की नई सिरे से तमीर कराई जाए और इजाफी क्लासरूम बनाए जाएं ताकि तलबा को परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन इंतजाम अली के साथ अब्दुल रशीद अब्बासी, TV टुडे न्यूज, चंडोलियार। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में गर्ल्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नई तालीमी सेशन के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया है। टेस्ट में बड़ी तादाद में तालिबात ने शिरकत की है। मजीद जानते हैं डीजी खान से ब्यूरो चीफ कमर अली शमसी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, दानिश अथॉरिटी के ज़ेर निगरानी गर्ल्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डीजी खान में नए तालीमी सेशन के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स डेरा गाजी खान में आज एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए क्लास 6 का एडमिशन टेस्ट मुनक्कद हो रहा है और इस टेस्ट के लिए चूँकि हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होती है और अपने बच्चे को एडमिशन करवाना चाहती है, तो ऑलमोस्ट इस साल जो हैं वो 3000 प्लस स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं जिन्होंने इस एडमिशन टेस्ट देना है और हमारे पास जो सीट्स हैं इस साल के लिए वो 225 हैं। तो ये एक बहुत ही हाईली कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है और तमाम बच्चों की और पेरेंट्स की पुरजोर ये ख्वाहिश होती है कि इस टेस्ट को उनका बच्चा पास करे और हमारी भी ये तमन्ना होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरिट पर पास होकर इस स्कूल में एडमिशन लें और जो उनके ख्वाब हैं और जो उनके ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकें। जी मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल में आई हूँ अपनी बच्ची के एडमिशन टेस्ट दिलवाने। तो मैंने बहुत सुना है कि माशाल्लाह यहाँ का स्टाफ भी क्वालिफाइड है और यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है, बच्चों को अच्छी तवज्जो दी जाती है। तो मेरी आई होप मुझे बहुत ख्वाहिश है कि मेरी बच्ची का यहाँ एडमिशन हो जाए, उसका टेस्ट क्लियर हो जाए, तो यहाँ से पढ़ के जाए तो कामयाब हो जाए। इसके स्कूल में आई हूँ एडमिशन के लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा एडमिशन इधर हो जाए। बहुत अच्छा स्कूल है और मैंने यहाँ पर आने के लिए बहुत मेहनत की है ताकि मैं मेरिट पे एडमिशन ले सकूँ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल बहुत अच्छा है, मैंने यहाँ पे आने के लिए बहुत मेहनत किया है, इसलिए मैं इस स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। आज मैं एडमिशन के लिए आई हूँ 6 में। गर्ल्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेरा गाजी खान में आला तालीम याफ्ता असातिज़ा की ज़ेर निगरानी में बच्चों को तालीम दी जा रही है। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, अभी आपको बताएंगे मांगा मंडी में मामूली तल्ख कलामी के बाद फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसमें 2 भाइयों को गोलियां लगी हैं। एक मौका पर ही दम तोड़ गया जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं मांगा मंडी से, जहां पर मामूली तल्ख कलामी के बाद फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसमें 2 भाइयों को गोलियां लगी हैं। एक मौका पर ही दम तोड़ गया जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक वाकया मामूली तल्ख कलामी का शाखसाना बताया जा रहा है, जबकि जाय वकुवा से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल चुका है। नाज़रीन, चकझुमरा में नौजवान नस्ल में तालीमी फ़रोग़ के लिए मैट्रिक के तलबा के दरमियान टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां सैकड़ों स्टूडेंट्स ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे रफीक अहमद। चकजुमरा खुर्डियांवाला इस टेस्ट का मकसद इलाके के ज़हीन और मेहनती तलबा का इंतखाब करना और इन्हें आला तालीम के बेहतर मौका फराहम करना है। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक टेस्ट का रिजल्ट 3 मार्च को बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। टेस्ट में शरीक तलबा व तलबात ने इस इकदाम को खुश आइंदा करार देते हुए कहा कि आज पंजाब कॉलेज जुमरा कैंपस का टेस्ट था और बहुत ज्यादा अच्छा इन्वायरमेंट था और इनकी मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छी थी और टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद है कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे और मैं इधर स्कॉलरशिप पे पढ़ूंगी इंशाल्लाह। मैं पंजाब कॉलेज बाईपास कैंपस में टेस्ट देने आई हूँ। इनका माहौल बहुत अच्छा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इस टेस्ट में कामयाबी हासिल करूंगी ताकि मुझे यहाँ पे स्कॉलरशिप मिले। इन्होंने टेस्ट अरेंज किया जिससे हमारी बहुत अच्छी रिवीजन हो रही है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं पंजाब कॉलेज में आके पढूं और स्कॉलरशिप पे पढूं और पोजीशन। मैं आज इस कॉलेज में टेस्ट देने आई हूँ और यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर्स भी बहुत पोलाइट है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पे ही पढ़ती हूँ। इस मौका पर अस्ताज़ा इकराम का भी कहना था कि
बच्चे जब यहाँ से विजिट करके जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होके जाते हैं यहाँ के माहौल को देख के, टीचर्स को देख के कि यहाँ का डिसिप्लिन वाकई ही बड़ा अच्छा है और ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। एक तो बच्चों को अपना नॉलेज पता चल जाता है टेस्ट के जरिए, दूसरा बच्चों को नेक्स्ट अपना प्लान करने में ईजी हो जाता है कि हमने फर्दर कहाँ पे एडमिशन लेना है। टैलेंट टेस्ट 10th क्लास के स्टूडेंट जो इस इलाके के हैं वो कंपटीशन के एग्जाम में बैठे हुए हैं। इस तरह के जो कंपटीशन के एग्जाम्स हैं ये लाजमी तौर पर होने चाहिए कॉलेजेस में। इससे जो है वो बच्चों का जो है विजन अच्छा होता है, क्योंकि देखें आजकल जो हमारे एग्जाम सिस्टम है उसमें तकरीबन 80% ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। इस मौका पर सीईओ पंजाब कॉलेज कैंपस जुमरा खुर्डियांवाला मियां अहमद नसीब का कहना था कि टैलेंट टेस्ट का मकसद सिर्फ नंबर देना नहीं बल्कि ज़हीन तलबा की दुरुस्त रहनुमाई करना है और मेरिट पर कामयाब होने वाले तलबा व तालिबात को खसूसी सहूलियात और स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। कैमरा टीम के साथ रफीक अहमद लोना, टीवी टुडे, चक जुमरा। नाज़रीन, लाड़काना में रंगारंग फ्लावर फेस्टिवल का शानदार इफ्तिताह किया गया है। वज़ीर आला सिंध के मामले खुसूसी खैर मोहम्मद शेख और मीर लाड़काना एडवोकेट अनवर अली लहर ने किया है। मज़ीद जानते हैं लाड़काना से हमारे नुमाइंदा अब्दुल खालिक जागरानी से। जी अब्दुल खालिक, बताइएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाड़काना शहर के जनाबाग में। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर लाड़काना की तरफ से फ्लावर फेस्टिवल मुनक़द किया गया है। इस हवाले से यहाँ मौजूद शहरियों और मेयर लाड़काना से बातचीत करते हैं। सर ये बहुत अच्छी बात है और लाड़काना में ये पहली मरतबा जो है फूलों का फेस्टिवल लगा हुआ है और मैं शहरियों को ये दावा दूंगा कि आए इस जो है ना माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ हो। अच्छी पेशरफ्त है। मेयर लाड़काना ने जो ये काम किया है ये तामीरी काम है, तफरी काम है। ऐसे मौके शहरियों को मुयस्सर किए जाने चाहिए। अच्छी बात है, लाड़काना में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। ये लोगों के लिए, बच्चों के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी कमेंट सुनिए तो मेयर साहब हर साल ऐसा प्रोग्राम होते रहे तो ये लाड़काना की खूबसूरती के लिए फूल का बहुत किरदार होना है, अच्छा किरदार। देखेंगे फ्लावर फेस्टिवल के हिसाब से तो ये आपको एक फ्लावर फेस्टिवल नज़र आएगा, लेकिन अगर आप इसको अमन, प्यार, मोहब्बत, सकाफत की नज़र से देखेंगे तो ये यहाँ लाड़काना की फूलों की महक में वो लाड़काना की मोहन के दड़ों की मिट्टी की खुशबू है। बहुत बेहतरीन इक़दाम है। वैसे तो तफरी जो है अपना हमारे पास पार्क बहुत कम है, ठीक है, जो हैं अगर इस तरह उनको बेहतर किया जाए सजा। लाड़काना में फेस्टिवल प्रोग्राम आज जी शुरुआत इफ्तिताह खैर शेख साहब ऐं सभिनी दोस्तनि असां गॾिजी कई आहे ऐं तव्हांजे तवसु सां मां लाड़काना वासियुनि खे इहा अपील कंदुसि त हू पाण फैमिलीज़ ऐं पंहिंजे ॿारनि सां वधि में वधि हिन प्रोग्राम में शिरकत करें, लुत्फ़ अंदोज़ थियनि। बाहर की मौसम में जब बाहर की मौसम आती है तो आप देख रहे हो तो दरख्त नाचते हैं, जैसे मोर नाचते हैं, आप हम नाचते हैं, कभी सुकड़ जाते हैं, फिर वो जो है ना जीना शुरू कर देते हैं। तो उस मौसम में, बाहर की मौसम में मेयर साहब ने ये अच्छा जो है ना एक फ्लावर फेस्टिवल लगाया है, तो फैमिलीज़ आएँ, देखें, देखकर इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो। लाड़काना के रहवासियों ने कहा कि ये फेस्टिवल हर साल मुनक़द किया जाए और बाहर की मौसम में ये फेस्टिवल मुनक़द करना हमारे लिए अच्छा साबित हो रहा है। कैमरामैन अली अकबर सुमरों के साथ अब्दुल खालिक जागरानी, टीवी टुडे, लाड़काना। नाज़रीन, आरिफवाला में एक निजी तालीमी इदारे के ज़रिए एहतमाम स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जहाँ तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में भरपूर हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। रिपोर्ट करेंगे जाकिर हुसैन। आरिफवाला में निजी तालीमी अदारे के ज़ेरे एहतमाम स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा व तालबात ने भरपूर जोशो खरोश के साथ मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स गाला में दौड़ और रस्साकशी समेत दीगर तफरीही मुकाबले मुनक्कद हुए, जिनमें बच्चों ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। ये जी अक्सर जो ना स्पोर्ट्स गाला के वाले से हम लोगों ने ये बनाया है एक प्लान, ताकि बच्चों की ना कुछ छुपी जो सलाहियतें होती हैं उनको उजागर किया जाए, ताकि बच्चे थोड़ा बहुत इंजॉय कर लें, क्योंकि स्टडी के साथ साथ ये जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ इनका होना भी ज़रूरी है हर स्कूल के अंदर। तो हमारा मकसद था कि बच्चे थोड़ा बहुत इंजॉय करेंगे। स्पोर्ट्स गाला के मौका पर बच्चों ने गैर मामूली जोशो खरोश का मुजाहरा किया।
उन्होंने न सिर्फ मुख्तलिफ खेलों में भरपूर हिस्सा लिया बल्कि तफरीही लम्हात से भी दिल खोल कर लुत्फ अंदोज हुए। हमारे स्कूल में फेस्टिवल था, हमने बहुत इंजॉय किया और मैंने काफ़ी गेम्स में हिस्सा लिया है, एक है क्रिकेट और बैडमिंटन में भी लिया है, हमने बहुत मज़ा आया। यहाँ पर बहुत इंजॉय किया है। स्कूल में हम लोगों को हम लोगों ने मौका दिया है खेलने का। मैंने फुटबॉल में हिस्सा लिया, बैट बॉल में हिस्सा लिया और यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। स्पोर्ट्स गाला में मौजूद वालिदैन की बड़ी तादाद ने बच्चों की कारकर्दगी को सराहा और ऐसे सेहतमंद प्रोग्रामों के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।